Okay, dear students. Today we are going to take the snap interview of our student Karishma Gupta. She's preparing for UPPSC Computer Science, and today we are going to take operating system snap interview. Okay, Karishma, please introduce yourself. My name is Karishma Gupta. I belong to Kanpur, UP. I did my schooling from my native place, affiliated to UP board. After that, I did my engineering in computer science engineering from Kanpur Institute of Technology, institute that is affiliated to GBTU. After that, I worked as lecturer in various engineering colleges, and I took lectures on operating system, database management system, computer networks, and software engineering. And presently I'm taking home tuitions at home Hmm. and preparing for the government exams, various government exams, Okay, and for the government sectors, and got this opportunity for interview. Thank okay, you. great. Thank you. Karishma, let us start with operating system snap interview directly now. Okay, So, sir. first, tell me the boot sequence of an operating system. Boot sequence, आई थिंक सर ये जो बूटिंग है, बूटिंग का बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो Hmm. हमारी रोम में स्टोर होता है। Hmm. और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं देन वो रोम से जो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, सॉरी वो जो रोम में होता है वो मेन Hmm. मेमोरी में लोड हो जाता है। एंड आफ्टर दैट कुछ प्रोसेस चलता है, हार्ड बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग होती है। देन उसके बाद एक्चुअली आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस राइट नाउ। Okay. Okay. What are deadlock prevention mechanism? डेडलॉक प्रिवेंशन, Acha, first tell me what are the methods to handle deadlock. There are four methods by which you can handle deadlock. ये सर दीज आर फोर: म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, होल्ड एंड वेट। These are not deadlock handling mechanisms. These are like conditions for which deadlock cannot occur. But I am asking like what are deadlock handling techniques or methodologies? There are four methodologies in which one is preemption. Sorry, prevention. Other three you can tell me. Detection, Yes. prevention, avoidance, Yes. and detection, prevention, avoidance, and Ignorance. ignorance. Yes, Correct? ignorance. Yes. Hmm. Now tell me, how do you like organize and work under this deadlock prevention methodology? Deadlock prevention methodology. Prevent. I think, इसमें सर we have to keep in mind some few points, like कि जो भी resource है एक particular order में allocate हो, Hmm. एक particular sequence में order हो, Hmm. कि और दूसरा है कि हम सारे रिसोर्स को या तो पहले एलोकेट कर दें। Hmm. एंड यस, दैट्स इट। Okay. Acha, what algorithm do you use in your detect and recover mechanism? डिटेक्ट एंड रिकवर, बैंकर्स एल्गोरिथम। Okay, I explain banker's algorithm. बैंकर्स एल्गोरिथम एक्चुअली सर इसमें जो भी डेटा होता है हमारे पास प्रोसेस का, और प्रोसेस का पूरा डेटा, और हमारे पास क्या 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 डेटा रोल, गिवन होता है प्रोसेस का? प्रोसेस वेरिएबल्स का क्या क्या होते हैं? पर्टिकुलर हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, Hmm. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या अलॉट किया हुआ है पर्टिकुलर प्रोसेस को, क्या हमारे पास रिमेनिंग है और क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है। Okay. हाँ, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है रिसोर्सेज, हम चेक करते हैं कि क्या कौन सा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। Okay. उसे पर्टिकुलर प्रोसेस को हम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं अलॉट करते हैं, और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोसेस उस रिसोर्स को यूटिलाइज करता है देन उसके बाद वो फ्री कर देता है। तो हमारे पास जो भी उसने पहले से लिए होते हैं और जो हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, देन हम अगेन प्रोसेस चेक करते हैं कि किसकी हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहते हैं एंड कर सकते हैं। एंड Hmm.
वन बाय वन हम चेक करते हैं। अगर हमारे सारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट एट द एंड हमें सेफ सीक्वेंस मिल जाता है, देन अच्छा, ये सेफ हम सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सेफ सीक्वेंस उसे बोलते हैं कि किस प्रोसीजर में, आई मीन किस ऑर्डर में हम पर्टिकुलर प्रोसेस को अलॉट करें रिसोर्सेज, जिससे डेडलॉक अकर ना हो। ओके। अच्छा करिश्मा, टेल मी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड प्रेसिडेंस ग्राफ? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड प्रेसिडेंस ग्राफ, आई थिंक सर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में एक डायरेक्शन प्रॉपर मेंशन होती है कि कौन सा रिसोर्स किस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलॉट है, और कौन सा प्रोसेस किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। एंड आई थिंक सो। एंड प्रेसिडेंस ग्राफ? प्रेसिडेंस ग्राफ में आई थिंक नो आइडिया। ओके। अच्छा, ठीक है। डू यू नो टू प्रोसेस सॉल्यूशंस? टू प्रोसेस टर्न टू वेरिएबल, प्रोसेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस? टर्न वेरिएबल, you can use turn on Peterson. So how many approaches are there? Approaches I'm not getting. There are three approaches in two process software solution. To process software solution. No So idea right first now. is using flag variable, second is using turn variable, and third is the combination of flag and turn variable, right? Slack and turn variable. Okay. That is Peterson's approach. Yes, sir. Yes, sir. Can you recall? Yes, sir. And now I can. Okay. So write down this algorithm for the two process solution where you are using only one variable, and that is turn variable. Algorithm now. Yes, yes. Write down the I'm algorithm. not able to recall. Sorry. Okay, okay. Okay. Acha, tell me the differences between threads and processes. Okay. Process एक एक्टिव प्रोसेस, आई मीन प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है, और ये पर्टिकुलर जो भी, और जो थ्रेड है वो उस एक प्रोसेस के मल्टीपल टास्क को मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड वी कैन हैव। यूजर लेवल थ्रेड में ऑपरेटिंग सिस्टम अनअवेयर होता है, क्योंकि उसे यूजर थ्रेड एलोकेट करता है कि कौन सा काम किस पर्टिकुलर थ्रेड को दिया हुआ है, और कर्नल लेवल थ्रेड में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अगर किसी प्रोसेस में सपोज करते हैं एन थ्रेड है, और अगर किसी एक थ्रेड में प्रॉब्लम आती है तो वो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अवेयर नहीं है यूजर लेवल थ्रेड के लिए कि क्या हो रहा है इसमें। वो सारे थ्रेड को वो एज एक सिंगल प्रोसेस कंसीडर करेगा। बट कर्नल लेवल थ्रेड में अगर किसी पर्टिकुलर थ्रेड में प्रॉब्लम अकर होती है तो वो उस पर्टिकुलर थ्रेड को ब्लॉक करेगा, उससे पूरे प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, इसमें शेड्यूल कौन करता है? लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर? सर यूजर लेवल थ्रेड में यूजर शेड्यूल करता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इवन अवेयर भी नहीं होता है कि इसमें मल्टीपल थ्रेड्स है, वो सबको एक सिंगल प्रोसेस की तरह कंसीडर करता है। बट कर्नल लेवल थ्रेड में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है और वही इसकी शेड्यूलिंग करता है। Okay. अच्छा, जो ये यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो कौन शेड्यूल करते हैं? यूजर अलॉट करता है, आई मीन यूजर तो ठीक है, बट मुझे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी बताओ, लाइक उसका नाम क्या है? सिस्टम कॉल, ओके। फोक सिस्टम कॉल, हाँ, ठीक है, फोक सिस्टम कॉल। ठीक है। ओके, ओके। How do you how do you check whether a transaction is getting in safe sequence or not? अब जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पास होते हैं, हम उसका कंटेक्स्ट स्विच डायग्राम बनाते हैं। इफ देयर इज अ साइकिल,
अगर वहाँ पे साइकिल फॉर्म होती है अगर वहाँ पे साइकिल फॉर्म होती है तो ये अच्छा करिश्मा, आपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में सुना है क्या? सर पढ़ा हुआ मैंने। लेवल शॉर्टिंग होती है, ये हम्म। लेवल शॉर्ट होती है, पर्टिकुलर एक नोड से हम एंड नोड तक जाते हैं इसमें। हम्म। तो वो कैसे हेल्प कर सकता है ट्रांजेक्शन्स में? ट्रांजेक्शन में सारे सर इसमें क्या होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन का मेन मोटिव होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सेंडर टू रिसीवर तक जो भी है, तो हम सारे लेवल को चेक कर सकते हैं और कौन सा शॉर्टेस्ट लेवल, मतलब शॉर्टेस्ट मल्टीपल जहाँ पे ज्यादातर कनेक्टिविटी, कम से कम कनेक्टिविटी है, तो हम उसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट काम कैसे करता है वो मुझे एक्सप्लेन करो एक बार। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सर एक हम सेंडर सोर्स देखते हैं, एक डेस्टिनेशन देखते हैं। हम्म। देन उसके बाद हम सोर्स से जितने भी हमारे पास लाइक एजेस होती हैं, उनके थ्रू हम चेक करते हैं कि कौन से, मतलब किस पर्टिकुलर नोड से किस पर्टिकुलर नोड तक के बीच में कनेक्टिविटी है, उसे कनेक्ट करते हैं एंड हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ रीच करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमारे पास मल्टीपल वेज आते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के। उसमें से हम जो बेस्ट हमारे पास वे होता है उसे हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके अपने ट्रांजेक्शन में हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा वे बेटर है, किसमें मिनिमम से मिनिमम कनेक्टिविटी, आई मीन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं। तो आई ओके। थिंक इट विल बी बेस्ट फॉर अस। ओके, ठीक है। तुमने पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पढ़ रखे हैं? यस सर, मैंने पढ़ा हुआ है। ओके। मैं एक सीक्वेंस बोलूंगा, तुम्हें लाइक 3 फ्रेम्स है तुम्हारे पास, ठीक है? और ओके सर। LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज करना है और तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने होंगे इसमें, ठीक है? ओके सर। ठीक है, सीक्वेंस लिखो। यस सर। 37 37 01 01 23 23 57 57 632। 63। हाँ, अब इसमें बताओ कि कितने पेज फॉल्ट्स होंगे। जस्ट अ सेकेंड सर। Hmm, 11। ओके, ठीक है। एम आई राइट सर? यस। ओके मैं फीडबैक दूंगा तुम्हें अभी। ओके 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 हम्म, सर, ओके सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। सो करिश्मा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में और मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारे मैंने इवोल्यूशन बताया तुम्हें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। यस सर, यस सर। मुझे एक्सप्लेन करो स्टेप बाय स्टेप कि इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें बताना है, फिर तुम्हें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग बताना है। टाइम शेयरिंग छोड़ दो। ओके सर, बैच बैच में क्या होता है, जो भी हमारे पास जॉब्स होती हैं उन्हें हम्म। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स को हम एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन करते हैं और एक बैच असाइन करते हैं और उसी पर्टिकुलर बैच के अकॉर्डिंग ये सारी प्रोसेस करती हैं। ओके। ओके। मल्टी प्रोग्रामिंग में कई सारे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। ओके। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, हम उसमें पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस स्विच कर जाता है। इसके लिए हमारे पास कई सारी पॉलिसीज भी हैं कि कैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ हम स्विच करेंगे। इट्स मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, पर्टिकुलर टास्क टाइम अलॉट कर देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग स्विच करते हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ। ओके। मल्टी ओके, प्रोग्रामिंग, ठीक है, मैं फीडबैक दे देता हूँ।
ओके। तो करिश्मा देखो, फर्स्ट मैंने पूछा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बूट ओके सर। सीक्वेंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो बूट हाँ। सीक्वेंस तुम्हें वापस से अच्छे से देखना है। और ये लाइक बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो देख लेना एक बार, प्रॉपर बूट सीक्वेंस है इसका, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, मैंने फिर पढ़ा हुआ है डेडलॉक। पहले। ओके। डेडलॉक प्रिवेंशन मेथोडोलॉजी, अब मैंने तो यहाँ पे हिंट दे दिया, बट वहां पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यस सबसे सर। पहले तो डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स पूछेगा। फिर उसके अंदर जो तुम चार टेक्निक बताओगे, इग्नोरेंस, डिटेक्शन, रिकवरी, यस प्रिवेंशन सर। और अवॉइडेंस, उसके अंदर यस। फिर और क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या टेक्निक्स हैं और अवॉइडेंस में क्या क्या टेक्निक्स हैं, ओके। डिटेक्ट एंड यस। रिकवरी में तो बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ लेते हो, बट प्रिवेंशन में चार टेक्निक्स और है, और अवॉइडेंस में भी दो टेक्निक्स और है। तो वो देख लेना एक बार, डेडलॉक के कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। अ, तो ये भी मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था इसका। बैंकर्स हम्म। एल्गोरिथम का एक्सप्लेनेशन सही था, तुमने वेरिएबल्स बता दिए थे, तो वही हम्म। इंपॉर्टेंट है बैंकर्स एल्गोरिथम। रिसोर्स ओके। एलोकेशन ग्राफ और प्रेसिडेंस ग्राफ में तुमने सही से डिफरेंसेस नहीं बताया, बिकॉज यू वर नॉट नोइंग द डिफरेंस, द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ। यस सर। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो पता ही है, जिसमें रिसोर्सेज और प्रोसेस दोनों होते हैं। हाँ। बट प्रेसिडेंस ग्राफ में जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से इसका रिलेशन है, एक ओके, ओनली प्रॉपर, प्रोसेस आर देयर। इसमें खाली प्रोसेसेस आते हैं जो आपस में ओके। लिंक्ड हैं, हाँ और हाँ हाँ। कौन सा राइट। प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, ओके। ठीक, वो ठीक है। प्रेसिडेंस ग्राफ है। फिर टू प्रोसेस सॉल्यूशन तो तुमने मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मतलब ये तो बहुत, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कोड और ये सब कोड, थोड़े छोटे छोटे कोड जो तुम्हें बताने पड़ेंगे, टर्न वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल, जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आता है, ये सब तुम्हें शो करना पड़ेगा। लाइक कि है ना, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है कि जैसे मान लो टर्न वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। टर्न हम्म। वेरिएबल वन से इनिशियलाइज्ड है, अब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, तो टर्न वेरिएबल को जीरो करके जाएगा, हाँ राइट। हाँ और हाँ हाँ। सेम टाइम पे तुम्हारा प्रोसेस टू एंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो नहीं जीरो करते, से माइनस म्यूचुअल में एक्सक्लूजन, हाँ। बाइनरी सीमा, बाइनरी होता है ये जो टर्न वेरिएबल, राइट। हम्म। तो इस तरीके से तुम्हें मतलब देखना पड़ेगा, ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। इसमें भी तीन चीजें होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस है या नहीं है, ओके, और बाउंडेड प्रोग्रेस, वेट, बाउंडेड वेटिंग, हाँ। ये सब चीजें तुम्हें देखनी है मतलब। तो ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन के अंदर आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके सर। और कोड के साथ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इसको, ठीक है। ओके सर। थ्रेड्स, प्रोसेसेस, कर्नल लेवल थ्रेड्स, ये तो चलो ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वापस। ओके इसकी सर। मतलब तुम्हें एल्गोरिथम ही पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक बार वापस विजिट कर लेना ओके और सर। थ्योरी पढ़ लेना एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट की, ओके। हम्म। सेफ सीक्वेंस वाला आंसर सही था, और 11 उसका आंसर है। लीस्ट, सॉरी, ये प्लीज LRU। एलआरयू पॉलिसी पे, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग, ये भी तुम्हारा जैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाँ इन हाँ। तीनों में डिफरेंसेस। तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन सही है, बट बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग वाला, ठीक है। ओके सर। तो ये एक बार देख लेना। बाकी तो मोर और लेस ठीक है, लाइक पांच क्वेश्चंस के आंसर तुमने सही दिए और पांच क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं, हम्म। मतलब पार्शियली करेक्ट थे कुछ कुछ के। हम्म। तो देख लेना, ओके। ओके सर, मुझे एक डाउट है। हम्म। एक्चुअली मुझे ये टर्मिनोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि टू प्रोसेस सोल्यूशन मतलब क्या है। समझा मैं, वो तभी डेवलप होगा जब थ्योरी पढ़ी हुई होगी। हाँ। ओके। तो टू प्रोसेस सॉल्यूशन देखो, अब टू प्रोसेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, नाम से ही दिख रहा है कि ये ना दो प्रोसेस है और इनके सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो हम्म। इसमें क्या क्या आएगा, राइट। इसमें तुम्हारे पास जो लाइक हमें तीन चीजें गारंटी करनी होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट। तो प्रोसेस का सॉल्यूशंस मतलब कि तुम्हें प्रोसेस एक टाइम पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करे और दूसरा प्रोसेस में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना करे, ये इसका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ये बोल सकते हैं, ठीक है। एक एंड प्रोसेस सॉल्यूशंस भी है जो सीमाफोर से होता है, तो वो उसके बाद क्वेश्चंस बनते हैं उस पे, ओके। ओके सर।